to the lecture 2 series of computer communication and networking. So, I am your course instructor Sameen, and previously we learned about the main concepts regarding the IPv4, and before we discussed it is a 32-bit address. Now I am going to explain in detail what is the difference between IPv4 and IPv6 addressing. So now explaining it one by one, so this would be clear for everyone. So IPv4 is basically a 32-bit address. How it's possible? It has four groups and each group has 8 bits. So 8 plus 8 plus 8 plus 8, so it will become a 32 bit, and in binary it will represented it as number of ones. So it has 8 bit, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 bits. So, and how it will represent in a subnet mask, and it has a subnet mask of 255 255 255 and then 255. So before we have learned about the classes, we have A, B, C, D and E classes. So the old classful system is now obsolete, and here is the new CIDR in classes inter-domain routing systems, in which we use the variable length subnet mask. So it has a variable name subnet mask, and before we have a fixed classes and fixed subnet masks, and now the organization use CIDR and based on the subnet mask in CIDR. So IPv4 is basically a 32-bit, and it has a total number of addresses 2 to the power of 32. So it has 32 addresses. So 2 to the 32 is 4.2 billion space it has. So it has a very less space as compared to the IPv6. So, and today we are using a combination of IPv4 and IPv6, and both has advantages and disadvantages. So it has a total number of address space 2 to the power of 120 bits. 128 bits is 340 undecillions. And what is undecillion? Is a 12 groups of 3 zeros. And how it will look like? Just wait for a minute and the screen will show you the result. So billion has 9 groups of zeros, and undecillion has 12 groups of zeros. So it has more space. So basically IPv6 is usually used on the virtually unlimited addresses, and it is highly favored in modern technologies, mobile networks like 4Gs, 5Gs. Today we are using it, and it is used for broadcast. IPv4 is used for broadcast address, like we it will send an ARP request and each and every device listen it, so number of packets get wasted, and also it get the slower result as compared to the IPv6. It only sends the packet where the needs, so it use multicast a specific group of devices, or the anycast means a specific devices or the specific machine. So IPv4 is basically we will configure it manually or dynamic host configuration protocol. It uses manual and auto configuration both, but IPv6 is for the auto configuration only. And the header size of the IPv4 is the variable 20 to 60 bytes, and IPv6 is the header size of 54 40 bytes. So in this IPv4, we manually configure and added the security features, but in IPv6 there is a fixed size. So now moving forward to our next in detail. So IPv4 four groups that we have learned before, and what is CIDR? CIDR is basically is a 32 bit. So number of ones count करेंगे हम इसमें कितने हैं, तो इसके अंदर जो है हमारे पास 32 बिट्स हैं. Now next is the host calculation. Host means the number of hosts connected to a particular network. So we have 2 to the power of h, मतलब कि h बिट्स रिजर्व है हमारे पास होस्ट के लिए. -2 इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक नेटवर्क की आईडी और होस्ट एड्रेस है. सो इसके अंदर हमारे पास जो एक हमारे पास लार्ज यूजुअली हमारे पास एक आईपी असाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन को, देन वो उसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल सबनेट्स बना देते हैं. तो हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क है, और जो बिट्स हम बोरो कर रहे हैं होस्ट पोर्शन से वो हमारे पास होगी 2 की पावर n. सो हमारे पास 2 की पावर n हमारे पास सबनेट्स बनेंगे. तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर होम या नेटवर्क हो सकता है,
जिसके अंदर हमारे पास सबनेट मास्क है 255, 255 एंड 255, देन /24 जो है उसका CIDR दिया हुआ है। नेटवर्क ब्लॉक जो है उसकी IP है 192.168.1.0। फाइंड द यूजेबल होस्ट, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट जो होता है हम उसमें से टोटल IP में से अपनी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो आता है यूजेबल IP रेंज आ जाती है। सो हमारे पास नेटवर्क को कितने बिट्स असाइन है, /24 बिट्स असाइन है, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं वो होस्ट के बिट्स होते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स कितने आ गए, 32 में से हमने 24 माइनस किया, 8 बिट्स हमारे पास रिजर्व है होस्ट के लिए। और टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने हैं इसके ऊपर, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफ जितने बिट्स हमारे पास होस्ट को असाइन है वो हमारे पास 256 है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ IPs हमारे पास है 256। देन हमारे पास नेटवर्क एड्रेस जो है 192.168 और 1.0 वाला जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट हमेशा 255 वाला होता है, और उनके बिटवीन में जो रेंज आ रही है वो हमारे पास यूजेबल रेंज है। इसका जो सबनेट है, एक सबनेट पॉसिबल है बिकॉज 2 टू द पावर ऑफ n मीन्स के 2 की पावर 0, मतलब होस्ट से कितने बिट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो होस्ट से हमारे पास जो है 0 बिट्स आ रहे हैं, तो 2 की पावर 0 हमारे पास हो जाता है 1। तो हमारे पास एक सबनेट पॉसिबल है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसके अंदर हमारे पास एक HR डिपार्टमेंट है, एक IT डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट है, और हर किसी के होस्ट डिवाइडेड है। सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास 100 यूजेबल होस्ट हैं, और हमारे पास IT डिपार्टमेंट में 50 यूजेबल होस्ट हैं, और जो है HR डिपार्टमेंट में हमारे पास 50 हैं। तो हम सब इनके बिट्स निकाल लेंगे। इनके बिट्स से हमारे पास पता चलेगा एक सबनेट में हमारे पास कितने बिट्स यूज़ हुए हुए नेटवर्क को, और फिर हम उससे निकालेंगे CIDR। सो हम सपोज करते हैं कि 100 हमारे पास यूजेबल होस्ट है, तो 100 किस में पॉसिबल हो रहा है, 2 की पावर 7 इज 128। सो हमारे पास 2 की पावर 7 इस क्या होते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इसमें इतने आएंगे, इसमें से हमने 2 माइनस किया तो 126 हमारे पास यूजेबल होस्ट आएंगे। और नेटवर्क को कितने असाइन है, तो हमारे पास नेटवर्क को होंगे 32 में से हमने 7 माइनस कर दिए तो हमारे पास 25 है, बिकॉज हमारे पास जो 7 बिट्स थे वो हमारे पास होस्ट के बिट्स थे। तो हम नेटवर्क बिट्स कैसे निकालेंगे कि 32 में से 7 चले गए तो हमारे पास 25 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के बिट्स आ गए। तो हमारे पास ये जो नेटवर्क है इसके अंदर /25 होगा। और इसी तरह IT जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 50 यूजेबल होस्ट हैं, सो वो उसके अंदर 6 बिट्स हमारे पास इस सबनेट्स में चाहिए। तो 2 की पावर जो है 64 टोटल नंबर ऑफ IPs हो जाएंगे, यूजेबल होस्ट हमारे पास हो जाएंगे इसके अंदर 62। और जो है हमारे पास नेटवर्क को कितने बिट्स असाइन है कि 32 में से 6 चले गए तो हमारे पास 26 बिट्स आ जाएंगे। देन फिर हमारे पास है HR जो है HR डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलरली वैसा ही होगा कि 2 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होंगे, और हमारे पास जितने यूजेबल होस्ट और फिर नेटवर्क के बिट्स आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि अपने जो होस्ट रिक्वायर्ड है एलोकेट CIDR का पोर्शन बनाएंगे, सबनेट मास्क क्या है, नेटवर्क ID क्या है, और हमारे पास तो जैसा कि हमने देखा था कि सेल्स के लिए /25 आई मीन्स 24 प्लस एक बिट हम होस्ट पोर्शन से ले रहे हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 की पावर हमारे पास हो जाएगा 7। 2 की पावर 7 कितने हो जाते हैं 128। सो 128 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से हम अपना जो है सबनेटिंग का चार्ट कंप्लीट करेंगे। सो हमारे पास ये किस तरीके से आई है वैल्यू, मैं आपको 1 बाय 1 समझा देती हूँ। तो 192.168.1.0 is the network part, and 192.168 1.1 से लेके हमने इसके अंदर कितने प्लस करने हैं, हमने 0 में कितने प्लस करेंगे 127 हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो 0 से लेके 127 तक की जो रेंज होती है वो 128 होते हैं टोटल। सो हमारे पास 1 से लेके 126 यूजेबल होस्ट हो जाएंगे, और हमारे पास कितने होंगे 127 जो है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट IP आएगी उसके अंदर जो है 190 जो है 128 से शुरू होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम सबनेट मास्क पे आ जाते हैं। 2 बिट्स हमारे पास शेयर कर रहा है वो होस्ट से शेयर कर रहा है, तो 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 तो हो जाएगा 192। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 128 से स्टार्ट करेंगे, 128 में हम कितने प्लस करेंगे 128 प्लस 64 प्लस करेंगे तो 192 आ जाएगा, और 192 में से हमने 2 माइनस कर दिए तो 190 हमारे पास इसका एड्रेस आएगा जो कि यूजेबल IP में यूज़ होगा 190, एंड देन 190 इससे एक बड़ा होगा तो वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। सो हमारे पास इसी तरीके से हम अपने HR डिपार्टमेंट पे आएंगे। अब हमारे पास इसी तरह से 2 बिट्स ये हमारे पास होस्ट के शेयर कर रहा है तो 192 हो जाएगा इसका सबनेट मास्क, और फिर ये 192 से स्टार्ट होगा। 192 में हम कितने प्लस करेंगे 64 प्लस करेंगे तो हमारे पास 256 आएंगे। अब 256 हमारे पास टोटल है, इसमें से 2 माइनस करिए तो 254 हमारे पास यूजेबल होस्ट का आ जाएगा, और फिर हमने जो उसका ब्रॉडकास्ट होगा वो 255 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सबनेटिंग कर देनी है अपने
जो डिपार्टमेंट है उसकी। तो इसी तरीके से IPv4 में होता है। इसके अंदर हम वेरिएबल जो है करते हैं, होस्ट नेटवर्क के कितने पार्ट्स असाइन है और होस्ट के ये डिपेंड करते हैं हमारे पास सबनेट मास्क और CIDR पे। बट हमारे पास IP जो V6 है इसके अंदर फिक्स स्प्लिटिंग होती है, मतलब कि हमारे पास 16 बिट्स के 8 ग्रुप्स होते हैं जो कि 128 होते हैं टोटल। तो जो शुरू के 64 बिट्स हैं हमारे पास वो हमारे पास नेटवर्क के होते हैं, जो लास्ट 64 बिट्स हैं वो होस्ट के होते हैं। सो हमारे पास जो है ये हमारे पास इसमें फिक्स स्प्लिटिंग होती है और इसी वजह से हमारे पास जो है ये हमारे पास फास्ट होते हैं। और टुडे जो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो IPv4 एंड IPv6 दोनों के कॉम्बिनेशंस यूज़ हो रहे हैं, दोनों के प्रोटोकॉल्स। तो हमारे पास इसी तरह जो IPv4 है इसके अंदर फॉर एग्जांपल 192.168 1.15 है। तो नेटवर्क का कितना पार्ट होगा, इसका सबनेट मास्क दिया हुआ है तो /24 बिट्स नेटवर्क को असाइन है, बाकी जो 8 रिमेनिंग बिट्स हैं 0.15 वाले ये हमारे पास हैं होस्ट के। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।